Hello everyone, how are you all? This is your GKGS mentor Ashish Kumar Singh in front of you, and here I am today again with a very important session which is associated with the GI tags, that is Geographical Indication Tags. इस सेशन में हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स what is GI tags, why they are important, how they are given and what are the prominent GI tags that we need to focus upon. कौन से वो prominent GI tags है जिन पे हमारा ध्यान होना चाहिए, ये सारे सेशन में हम लोग देखेंगे. ओके, अपडेटेड GI tags को भी हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे. Whatsoever GI tags we have got or the nation has got in 2023. So stay tuned for this session because GI tag से directly questions हमें देखने को मिले हैं. When it comes to any examination, we can see directly questions from the GI tag. Let us first see what is a GI tag. A GI tag is a sign used on products that have specific geographical origin. अगर कोई product है and that is being produced in a particular region, so that is given GI tag. Right now we can see from the statement कि statement यही कह रहा है that if any product have a specific geographical origin, okay, it has a specific geographical origin and possess quality or a reputation that are due to that origin, उस origin के चलते वो particular product famous है, that particular product is given GI tag. The GI tag came into effect on 15th of September 2023. Somehow you need to remember this date. Why? क्योंकि आजकल हम लोग देख रहे हैं कि whether there is any question in the current affair or there is any news in the current affair, directly static से question उठा के उसके बारे में पूछा जाता है. So कहीं ना कहीं इसको remember करना है that the GI tag was started on 15th of September 2003. How can you remember it? See here, 3 plus 2 equates to 5 and 5 plus 1 equates to 6. So 5 और 6 का consecutive number remembrance trick याद करना है, remembering trick use करना है और इसको याद करना है. Just try to remember it with the help of 5 and 6 ताकि तुम अगर एग्जाम में देखो तो गड़बड़ी ना हो. ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड में इन ट्रिक्स के थ्रू तुम्हारे ये डेट्स बैठ जाते हैं. So you never miss anything when it is about examination. Okay, it is a tried and tested method, so I request all of you to follow the same. Second thing, Darjeeling tea of West Bengal was the first Indian product to get a GI tag. Darjeeling tea पहला प्रोडक्ट था वेस्ट बंगाल का which has got a GI tag. It is also very prominent thing to remember कि दार्जिलिंग टी को सबसे पहली बार GI tag मिला था. Okay, GI टैग के बारे में एटलीस्ट वी हैव सीन दिस मच इंफॉर्मेशन इन दिस स्लाइड कि GI टैग होता क्या है, कब से इनिशिएट किया गया था और कौन सा वो पहला प्रोडक्ट है जिसे GI टैग दिया गया था. अब बढ़ते हैं थोड़े से आगे और समझते हैं कि और क्या GI टैग के बारे में देखने को मिल सकता है. GI टैग्स आर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स विच आर असाइंड टू अ सर्टेन प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन इट्स जियोग्राफिकल फीचर. इसको हम लोगों ने समझ लिया है. नाउ GI टैग प्रोडक्ट्स आर नॉट यूज्ड बाय एनीवन और एनी अदर region illegally giving it a specific right of isolation, meaning which कि अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को GI टैग मिल जाता है, उसको एक स्पेसिफिक राइट ऑफ आइसोलेशन मिल जाता है, दैट मीन्स दैट दैट प्रोडक्ट कैन बी प्रोड्यूस टू अदर रीजन्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर रीजन ओनली. ओके, इसका स्पेशलिटी यही है कि वो अपने रीजन को पॉपुलर बना देता है. GI टैग्स के थ्रू जो रीजन है वो पॉपुलर हो जाते हैं, जो स्टेट्स हैं वो पॉपुलर हो जाते हैं. सो जस्ट रिमेंबर दिस वेरी फैक्ट ऑल्सो अबाउट द GI टैग. ओके, GI tags fall under the purview of Geographical Indications of Goods Act 1999. ओके, ये जो है ये किस एक्ट के अंदर फॉल करता है? इट फॉल्स अंडर द GI इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शंस एक्ट 1999. 2003 में ये लॉन्च हुआ था 15th of September को and it has been under the purview of the GI Act of 1999. Just remember this and are issued by the Geographical Indication Registry. GI registry से ये GI tag issue किया जाता है. That is a very common thing to understand कि GI registry होता है जहाँ पे ये GI tags को issue करा जाता है and this GI registry falls under the Department of Industrial Promotion and Internal Trade, that is DIPIT, which is under the Ministry of Commerce and Industry. Ministry of Commerce and Industry के अंदर ये GI tags मिलते हैं. Just try to remember कि these GI tags are given under the Ministry of Commerce and Industry. इतना याद रख लो कि Ministry of Commerce and Industry के अंदर ये GI tags मिलते हैं. This tag is valid for a period of 10 years. 10 साल के लिए ये valid होता है, following which it can be renewed. So whenever a particular product is given a GI tag, for example
2023 में बहुत सारे जीआई टैग्स हम लोग अभी देखेंगे जो मिले हैं. सो दीज विल बी वैलिड टिल विच ईयर? दीज विल बी वैलिड टिल द ईयर ऑफ 2033 तक ये वैलिड रहेगा. उसके बाद फॉलोइंग विच इट कैन बी रिन्यूड, राइट? इट कैन बी रिन्यूड फॉलोइंग द कंप्लीशन ऑफ 10 years of tenure. Now the total number of GI tags in India in 2023 goes to over 445. अभी तक 445 प्लस चीजों को GI टैग्स मिल चुका है. ओके, जस्ट फॉर द नॉलेज ऑफ, फॉर द सेक ऑफ नॉलेज यू कैन रिमेंबर इट कि नियर अबाउट 440 प्लस GI टैग्स हमारे पास हैं. तमिलनाडु इज द स्टेट विद द मोस्ट नंबर ऑफ GI प्रोडक्ट्स. तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा GI प्रोडक्ट्स हम लोगों को देखने को मिला है. द टोटल नंबर इज 59. सो द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स which have got GI tag from a particular state, the highest state is Tamil Nadu and the number of products is 59. Okay, so just remember Tamil Nadu and 59. इस slide से इस information को just try to remember, and along with that just try to remember that it falls under the purview of the GI Act of 1999 and it is valid for a period of 10 years and it falls under the Ministry of कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के परव्यू में ये फॉल करता है. आगे बढ़ते हैं. नाउ लेट अस सी व्हाट हैज हैपेंड इन मार्च 2023. मार्च के महीने में देयर आर नियरली 33 प्रोडक्ट्स हैव गॉट GI टैग. 33 प्रोडक्ट्स को GI टैग मिला है. इट इज़ क्वाइट नॉट पॉसिबल फॉर ऑल ऑफ अस टू रिमेंबर एवरी GI टैग. हर किसी GI टैग को रिमेंबर करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. जस्ट ट्राई टू रिमेंबर द मोस्ट फेमस वन और द मोस्ट आइसोलेटेड वन. फॉर एग्जाम्पल वी कैन सी कि मार्च के महीने में इन द मंथ ऑफ मार्च उत्तर प्रदेश has got 10 GI tags, following which Tamil Nadu has got 11 GI tags and Union Territory of Ladakh has got 1 GI tag and Jammu Kashmir has got 8 GI tag. उसके साथ साथ मध्य प्रदेश और बिहार और छत्तीसगढ़ में भी एक GI टैग मिला है. सो इट माइट बी पॉसिबल दैट व्हिचसोएवर स्टेट हैव रिसीव्ड 1 GI टैग. सिर्फ एक GI टैग जिस स्टेट्स को मिला है उनमें से क्वेश्चंस बनने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है. हाउ एंड वाई? बिकॉज दे आर जस्ट आइसोलेटेड एंड दे आर जस्ट 1 in number. बस एक नंबर में है. तो एटलीस्ट बिहार में जो मिला है, मध्य प्रदेश में जो मिला है, छत्तीसगढ़ में जो मिला है और लद्दाख में जो मिला है, इसको याद करना क्वाइट ईजी होता है. एटलीस्ट वी कैन रिमेंबर 4 GI टैग्स आउट ऑफ 33 विच हैव बीन गिवन इन द मंथ ऑफ मार्च. तो इस तरीके से द प्रोमिनेंट वन, द फेमस वन एंड द आइसोलेटेड वंस, इन चीज़ों को हम लोग को ध्यान में रखना है व्हेन इट कम्स टू GI टैग. इस तरीके से तुम लोगों को याद रखना है. जस्ट रिमेंबर दैट. नाउ लेट अस सी द GI टैग्स. ओके, जैसे कि नागरी दूबराज. ओके, इट इज़ अ राइस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है. छत्तीसगढ़ में इसको GI टैग मिला है. सो यू शुड रिमेंबर व्हाट? यू शुड रिमेंबर नागरी दुबराज. नागरी दुबराज को याद कर लेना है क्योंकि वी हैव सीन कि छत्तीसगढ़ से बस एक ही चीज़ को, एक ही प्रोडक्ट को GI टैग मिला है एंड दैट इज नागरी दुबराज. ओके, नाउ लेट अस कम टू मिर्चा राइस. मिर्चा राइस भी एक तरह का राइस है एंड दैट हैज़ बीन गिवन टैग फ्रॉम द स्टेट ऑफ बिहार. तो ये बिहार से मिला है तो ऑटोमेटिकली इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. नागरी दुबराज इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिहार का मिर्चा राइस इंपॉर्टेंट हो जाता है और लद्दाख का शिंगकॉस दैट इज वुड कार्विंग, एक वुड कार्विंग का जो प्रोडक्ट है उसको लद्दाख से GI टैग मिला है तो लद्दाख इंपॉर्टेंट हो जाता है. और मध्य प्रदेश का रेवा सुंदरेजा मैंगो भी काफ़ी प्रोमिनेंट हो जाता है. सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू एटलीस्ट रिमेंबर दिस स्लाइड. इस स्लाइड को याद रखना है क्योंकि इन चारों स्टेट से एक GI टैग मिला है. इन चारों स्टेट से क्या हुआ है? इन चारों स्टेट से एक GI टैग मिला है एंड आई हेंस रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू रिमेंबर एटलीस्ट दीज नंबर ऑफ टैग्स विच आर गिवन फ्रॉम दीज स्टेट्स. इनमें से क्वेश्चंस प्रोमिनेंटली बन सकते हैं. सी हियर नाउ लेट अस कम टू उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश का बनारस पान को भी GI टैग मिला है. बनारस लंगड़ा आम को भी GI टैग मिला है. रामनगर भंटा दैट इज ब्रिंजल को भी GI टैग मिला है. आदम चीनी चावल हैज ऑल्सो गॉट अ GI टैग. प्रतापगढ़ अवनाला has also got a GI tag. Aligarh Tala, Aligarh lock is also very famous one. Okay, so at least what you can do, you can remember Aligarh Tala from Uttar Pradesh. Why? Because it is very famous. Aligarh का ताला काफ़ी famous है पूरे nation में and hence you should remember it that now Aligarh Tala has got a GI tag. बखीरा
Brassware has also got a GI tag. बंदा शजर has also got a GI tag. नगीना वुडक्राफ्ट को भी GI tag मिला है और हाथरस हिंग को भी GI tag मिला है. बट एटलीस्ट यू शुड रिमेंबर अलीगढ़ का ताला और समथिंग एसोसिएटेड विथ वुडक्राफ्ट या फिर पेंटिंग. सो नगीना वुडक्राफ्ट को भी याद रख लेना, दैट हैज गॉट अ GI tag फ्रॉम उत्तर प्रदेश. ओके राइट. क्वाइट पॉसिबल कि एग्जामिनर किसी से भी पूछ दे, बट वी हैव टू बी ऑन द कैलकुलेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी एंड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अगर देखते हैं तो जो आइसोलेटेड जीआई टैग्स है या जो फेमस जीआई टैग्स है उनसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशली एसोसिएटेड विद आर्ट एंड क्राफ्ट, एंड हेंस आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू रिमेंबर नगीना वुडक्राफ्ट एंड अलीगढ़ ताला फ्रॉम द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश. नाउ सी फ्रॉम द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, भदेरवा, राजमश, रामबन, अनारदाना, रामबन, सुलाई हनी, मुशिक बुजी राइस, बसोली, पश्मीना वुलन प्रोडक्ट्स. Now see, पश्मीना shawl is very famous. Right now we can see that पश्मीना has given the GI tag और पश्मीना shawl काफ़ी famous है. It is a textile product and that belongs from the state of Jammu and Kashmir. So इसको भी याद रखना काफ़ी important हो जाता है. बसोली पेंटिंग, as I said कि जो भी आर्ट एंड क्राफ्ट का एसोसिएटेड फैक्टर्स है उसको भी याद रख लेना. So बसोली पेंटिंग is also very worth remembering and it has been given the GI tag from the state of Jammu and Kashmir. Rajodi Chikri woodcraft has also been given the GI tag from the state of Jammu and Kashmir, and hence I request all of you to at least remember these three tags. Udhampur ka kaladi, that is a daily product, has been also given the tag from the state of or union territory of Jammu and Kashmir. Okay, अब आते हैं तमिलनाडु पे. अर्थुर वर्तेलाई एग्रीकल्चर, मनप्पराई मुरुक्कू फूड स्टफ, ककम्बर पनीर, थरचाई ग्रेप्स एग्रीकल्चर, मरथंडम हनी एग्रीकल्चर, नगमाना कॉटन साड़ी टेक्सटाइल. नाउ सी हियर, नगमम कॉटन साड़ी इज समवेयर एसोसिएटेड विथ आर्ट एंड क्राफ्ट. ठीक है, आर्ट एंड क्राफ्ट एंड डिजाइन से एसोसिएटेड है. सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू रिमेंबर नगमम कॉटन साड़ी. मलायदी स्टोन क्रेविंग्स, मनदमुरई पॉटरी, ओटी वर्की, थेकल्ली रतन क्राफ्ट एंड शोला वंदन वेरतल्ले. इनको याद रखना है. इसमें से एटलीस्ट इसको मोस्ट इंपॉर्टेंटली याद रख लेना. इन दो को किनको याद रख लेना है. सबसे पहला नेगमम कॉटन साड़ी और दूसरा थैकल्लई रतन क्राफ्ट. ओके, these are somewhere associated with art and craft and hence you should remember both of them. Now अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? अभी तक हम लोगों ने जो मार्च में 33 इंपॉर्टेंट जीआई टैग्स थे उनके बारे में स्टडी करा है. अब हम आने वाले और जीआई टैग्स को देखेंगे, फॉलोइंग विच वी हैव रिसीव्ड द टैग्स आफ्टर द मंथ ऑफ मार्च टिल द मंथ ऑफ अक्टूबर. जिन्होंने जीआई टैग को रिसीव करा है उनको देख लेते हैं जल्दी से. जीआई टैग्स के बारे में बात करते हैं तो 3 अदर फेमस प्रोडक्ट्स फ्रॉम तमिलनाडु हैव ऑल्सो रिसीव जीआई टैग. जदेरी, नमकट्टी, Kanyakumari, मट्टी बनाना एंड चेदीबुट्टा साड़ी. सो हेयर यू कैन सी अनदर आर्ट एंड क्राफ्ट का प्रोडक्ट दैट इज चेदीबुट्टा साड़ी. चेदीबुट्टा साड़ी, तो चेदीबुट्टा साड़ी को याद रख लेना है. अब हम लोगों ने प्रीवियस स्लाइड्स में देखा था कि जो जीआई रजिस्ट्री है दैट फॉल्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स. सो समवेयर माइट बी पॉसिबल कि यहाँ पे इनका एक हेड ऑफिस होगा. तो जो जीआई टैग का ऑफिस है दैट इज जीआई इंडिकेशन रजिस्ट्री दैट इज बेस्ड इन चेन्नई. ओके, चेन्नई में इनका ऑफिस है. इसको भी याद रख लेना. चेन्नई इज इन तमिलनाडु, चेन्नई तमिलनाडु में है और तमिलनाडु में ही जीआई रजिस्ट्री है. दैट इज व्हाई इट इज वर्थ रिमेंबरिंग कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तमिलनाडु में है. एंड चेदीबुट्टा साड़ी इज ऑल्सो एसोसिएटेड विथ तमिलनाडु. चेदीबुट्टा साड़ी के साथ यू नीड टू रिमेंबर नेगमम कॉटन साड़ी. सो नेगमम एंड चेदीबुट्टा, नेगमम एंड चेदीबुट्टा जस्ट 2-4 बार रिकॉल रिवाइज कर लेना. नेगमम एंड चेदीबुट्टा दे आर एसोसिएटेड विद द साड़ी वाला क्राफ्ट from Tamil Nadu. Now GI tags for Goa mangoes and Babikana craft from Rajasthan and UP. 7 products from across India including 4 from Rajasthan were given GI tag that is by the GI industry indication registry in Chennai. Let us see. गोवा मैंगोस को मिला है, बेबीकाना क्राफ्ट को मिला है राजस्थान यूपी से. जलेसर धातु शिल्प, जलेसर धातु शिल्प, दिस इज द जलेसर धातु शिल्प. इट हैज़ गॉट द जीआई टैग फ्रॉम द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश. ठीक है, आगे देखते हैं. गोवा मनुकुरद मैंगो, गोवा मनुकुरद मैंगो हैज़ ऑल्सो अचीव्ड द जीआई टैग. गोवा बेबीकाना, दिस इज गोवा बेबीकाना, इसको भी जीआई टैग मिल चुका है. राइट नाउ उदयपुर कोफ्टगारी मेटल क्राफ्ट फ्रॉम राजस्थान हैज़ ऑल्सो गॉट अ जीआई टैग. नाउ since it is a metal craft you should remember
जलेसर धातु शिल्प, इट इज ऑल्सो मेटल क्राफ्ट, यू शुड रिमेंबर। जितने भी आर्ट एंड क्राफ्ट से एसोसिएटेड जीआई टैग्स है उसको पक्के से रट के जाना, बिकॉज क्वेश्चंस आर डायरेक्टली आस्क्ड फ्रॉम देयर। ओके, सो मेटल क्राफ्ट जलेसर धातु शिल्प मेटल क्राफ्ट उत्तर प्रदेश, उदयपुर कोफ्तगारी मेटल क्राफ्ट राजस्थान, बीकानेर काशितकारी क्राफ्ट राजस्थान, दिस इज द बीकानेर काशितकारी क्राफ्ट फ्रॉम राजस्थान, इसको भी याद रख लेना, वाई बिकॉज इट इज द आर्ट एंड क्राफ्ट एसोसिएटेड थिंग। जोधपुर बंदेज क्राफ्ट राजस्थान एंड बीकानेर उस्ता कला क्राफ्ट राजस्थान। सो एटलीस्ट जस्ट ट्राई टू रिमेंबर दीज 4 टैग्स फ्रॉम राजस्थान। यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि 4 प्रोडक्ट्स फ्रॉम राजस्थान हैव गॉट अ जीआई टैग, और सारे के सारे किससे एसोसिएटेड है, आर्ट एंड क्राफ्ट से, राइट, आर्ट से एसोसिएटेड है, एंड हेंस दे ऑल 4 बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रिमेंबर। इसको याद कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम्स पर्सपेक्टिव। और उसके साथ जलेसर धातु शिल्प को भी याद रख लेना, फ्रॉम द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट वन to get the GI tag. So you have to remember these names also. उत्तर प्रदेश से भी एक नाम याद रखना है, because it is also associated with the art and craft वाला fact. Okay, now let's move further. ओडिशा का कपड़ा गंदा शॉल एंड कोरापुट्स कलजीरा राइस अर्न्स GI टैग। ओडिशा का एक शॉल है दिस शॉल इज कपड़ा गंदा शॉल इसको याद रखना है। ओके, and Koraput's Kaljeera rice, an aromatic rice variety with nutritional value, have been given GI tags. The Kapda Ganda shawls intricately embroidered and treasured by the Dongriya community embodied प्रोफाउंडली कल्चरल सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो कपड़ा गंदा शॉल को याद रखना है। जो कपड़ा गंदा शॉल है ये उड़ीसा का शॉल है और इसको भी जीआई टैग मिला है। आई हैव जस्ट पेस्टेड द पिक्चर फॉर यू टू रिमेंबर इन द पिक्टोग्राफिकल फॉर्मेट। पिक्टोग्राफिकल फॉर्मेट में याद रह जाए, दैट इज वाई वी हैव टेकन द picture of all these things. So just try to remember kapda ganda shawl is associated somewhere with Odisha. Okay, okay से याद रख लेना है ओडिशा कपड़ा गंदा। Just try to make some mnemonics in such manner. निमोनिक्स क्रिएशंस के लिए हम लोगों ने बहुत बार चीज़ों को देखा है, क्रिएट भी करा है। सो जस्ट ट्राई टू क्रिएट द निमोनिक्स इन सच मैनर ताकि दिमाग में लॉन्ग टर्म तक बैठा रह जाए। नाउ लेट्स मूव फर्दर। Some other geographical tags. जम्मू कश्मीर का फेम पश्मीना हैज गेट अ जीआई टैग, द फेमस बशोली पश्मीना। बशोली पश्मीना को हम लोगों ने प्रीवियसली भी देखा कि इट हैज गॉट अ जीआई टैग। बशोली पश्मीना इज मोर देन 100 ईयर ओल्ड ट्रेडिशनल क्राफ्ट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर का कठुआ डिस्ट्रिक्ट। जम्मू एंड कश्मीर का कठुआ डिस्ट्रिक्ट से हमें बशोली पश्मीना भी देखने को मिला है। सो इट इज वर्थ रिमेंबरिंग, याद रख लेना। नाउ अरुणाचल याक चुरपी खमती राइस एंड तंगसा टेक्सटाइल हैव आल्सो गॉट जीआई टैग। अरुणाचल प्रदेश का याक चुरपी है, खमती राइस है और टंगसा टेक्सटाइल है। ऑल ऑफ देम हैड गॉट अ जीआई टैग। याक चुरपी इज वेरी प्रोमिनेंट थिंग। याक चुरपी तो बहुत ही प्रोमिनेंट है, बहुत ही फेमस है। सो जस्ट ट्राई टू रिमेंबर याक चुरपी, खमती राइस एंड तंगसा टेक्सटाइल। एटलीस्ट इन 3 चीजों को याद रखना है। अ वेरी फर्स्ट एवर याक मिल्क प्रोडक्ट अरुणाचल याक चुपरी हैज गॉट द GI tag and it is a first ever yak milk product and hence it becomes very important. हम लोगों ने बहुत बार देखा है कि कोई भी चीज़ पहली बार होती है, first ever things they are very prominent and important and hence it is very important to remember अरुणाचल का yak milk product और yak chupri. Chupri is prepared from the milk of Arunachali yak, a unique breed found in West Kameng and Tawang district of the state. Okay, Thottukudi Udangi Panga Karapatti gets GI tag. The intellectual property conferred GI tag for the famous उडंगुडी पंगा करुपत्ती। नाम थोड़ा टिपिकल है बट वी नीड टू रिमेंबर इट। ओके, याद तो करना पड़ेगा ना। ओके, सो उडंगुडी पंगा करुपट्टी को भी मिला है GI टैग एंड इट बिलोंग्स टू द स्टेट ऑफ तमिलनाडु के स्टेट से ये बिलोंग करता है। दिस इज द पिक्चर, थोटुकुटी उडंगुडी पंगा करुपट्टी। ठीक है, बड़ा नाम है, याद रख लेना, ऐसे ही याद हो जाएगा क्योंकि बड़ा नाम है, राइट, बड़ा नाम है तो याद रह जाएगा। ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर। गोवा का कैश्यू इंडस्ट्री हैज रिसीव्ड अ GI टैग एंड दैट इज अ वेरी गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ अस। गोवा का कैश्यू बहुत ही फेमस है। ओके, एंड नाउ फाइनली इट हैज गॉट अ GI टैग, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। Goa ka cashew GI tag. The GI tag from Goa cashew holds significant implications for the cashew industry in Goa. Cashew was introduced to Goa by the Portuguese. Portuguese जो है उन्होंने गोवा में क्या इंट्रोड्यूस करा था? कैश्यू। सो जस्ट ट्राई टू रिमेंबर कि गोवा का कैश्यू इंडस्ट्री हैज ऑल्सो गॉट अ GI
टैग, इसको भी अच्छे से याद रख लेना। महाराष्ट्र इज इंडियाज लार्जेस्ट कैश्यू नट प्रोड्यूसिंग स्टेट। महाराष्ट्र इज फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा। फॉर योर इंफॉर्मेशन दैट इज FYI, ये फैक्ट भी डाला गया है कि सबसे ज़्यादा कैश्यू कहाँ प्रोड्यूस होता है, महाराष्ट्र में। सिंस देखो गोवा के कैश्यू इंडस्ट्री को GI टैग मिला है एंड दैट कैश्यू इंडस्ट्री वाज डेवलप्ड बाय पोर्टुगीज, तो कहीं ना कहीं करंट को स्टैटिक में लेके जा सकता है और सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट भी पूछ सकता है। एंड दैट इज वाई आई हैव एडेड दिस फैक्ट दैट महाराष्ट्र इज इंडियाज लार्जेस्ट कैश्यू nut producing state. So you should remember this thing also. Now some of the questions which I want all of you to answer. Which was the first Indian product to get the GI tag? इसका भी आंसर कमेंट सेक्शन में बता देना। We have seen this in our very first slide कि किसको सबसे पहले GI tag मिला था। उसके बाद what is the टाइम लिमिट ऑफ द GI टैग? क्या GI टैग का टाइम लिमिट 5 साल है, 10 साल है, 15 साल है, 20 साल है या फिर 25 साल है? इसके बारे में भी हम लोगों ने अपने फर्स्ट या सेकंड स्लाइड में डिस्कस करा था। आई वांट ऑल ऑफ यू टू एटलीस्ट रिमेंबर दीज थिंग्स। ये बहुत ही कॉमन स्टैटिक क्वेश्चन है विच आर आस्क्ड फ्रॉम द GI सेगमेंट, सो इसको भी याद रख लेना। नाउ लेट अस कम टू द थर्ड क्वेश्चन। विच स्टेट याक चुपरी खमती राइस एंड तंगसा टेक्सटाइल गॉट द GI टैग? नाउ एज आई सेड, अगर तुमको सिर्फ याक चुपरी के बारे में याद है, अगर तुमको सिर्फ याक चुपरी के बारे में याद है क्योंकि याक मिल्क से प्रोड्यूस किया हुआ पहला प्रोडक्ट है जिसको GI टैग मिला है, देन ऑटोमेटिकली यू कैन रिमेंबर द अदर टू टैग्स दैट इज खमती राइस एंड तंगसा टेक्सटाइल। तो इसका भी आंसर तुम लोग अपने से बता देना। इसको भी हम लोगों ने अभी अभी कुछ स्लाइड्स पीछे देखा है, राइट? एंड one more thing, which states mircha rice has got a GI tag? Now we are talking about mircha rice and as I said कि 33 tags have been given in the month of March। 33 tags मिले हैं, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या याद करना है, जहां पे भी किसी स्टेट को एक टैग मिला है, छत्तीसगढ़ को एक टैग मिला था, मध्य प्रदेश को एक टैग मिला था, बिहार को एक टैग मिला था और लद्दाख को भी एक टैग मिला था। तो आंसर इन्हीं चारों में से कोई एक है। सो व्हाट आई वांट ऑल ऑफ यू इज टू आंसर ऑल दिस एंड टू नॉट लर्न दीज GI टैग्स इन सच अ मैनर। इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दीज ऑल आर प्रीवियस ईयर टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड हेंस आई हैव एम्बेडेड देम फॉर ऑल ऑफ यू टू नो कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस एंड हाउ टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। ओके, सो दैट वाज ऑल फ्रॉम दिस सेशन। इस सेशन से काफ़ी कुछ था, इतना ही था, जस्ट सी इट। उसके बाद GI टैग से कुछ भी मिस नहीं होगा, दैट इज माई पर्सनल गारंटी टू ऑल ऑफ यू। टिल देन थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन दिस सेशन। सी यू सून, वेरी सून।